to say, because some of the principles which I will say, these form the backbone of the psychological therapies which are practiced in various counseling sessions. So one is, you need to understand and completely comprehend the power of presence. Let me simplify. That is the power of now. Let me break it more down. Right now you're in this room, okay? You're in front of me. Your brain always, irrespective of the time and place wherever you are, your brain is always going to trick you of thinking about future or lamenting about your past, okay? But what you need to keep in your brain, this is very important. Whatever I am saying now, books have been written on it. But I know, because I am putting it in a form of nutshell in front of you, you will not gauge its importance and you will not understand how much heavy these words are which I am speaking in front of you. तो पहली चीज, presence की importance. आप अभी हो ना, right now, your brain is the biggest enemy which you have. This is a very difficult thing, a very dramatical phrase which I have said in front of you. Your brain is one of the biggest enemies, and it's a sort of veil which completely hides you from the real experiences which you will have in your life. I know I am saying things, let me break it down properly. आपको okay, I'll make it bilingual, even trilingual, I will even include Kashmiri in it. तो तुम लोगों को क्या करना है, जो presence है, present, now, you have to give it every importance. In short, अभी आप यहाँ पर खड़े हो, तो every time which you will have after this, वो क्या है, आप यहाँ अभी ख़त्म हो जाएगा session, you will move out, you will go to your places, आप अपनी अपनी जगह चले जाएंगे. That is future, okay? उसके बारे में आपको कभी भी, जब भी आप कोई भी काम करेंगे, आपको उसके आगे के बारे में कभी नहीं सोचना है. You have to make your plans, you have to make your goals, you need to have aspirations and ambitions. लेकिन हमेशा जो भी काम करो, do it with proper concentration. Full. जो भी काम किया, 100% concentration. Even if you have to take your meals. आप खाना खा रहे हैं, Science has done a study. If you take your meals and you concentrate while taking meals, your enzymes will work better. आपके enzymes अच्छे से work out हो जाएंगे और you will have a proper digestion. जो भी काम करो, give it your 100%. Don't lament. Don't think about your past. Past के बारे में मत सोचो. कुछ भी चीज़ आपने अभी तक जो भी फेस किया अपनी लाइफ में, उसके पास्ट के बारे में you don't have to think continuously. You don't have to overthink. और जो फ्यूचर है, फ्यूचर अब क्या होगा, अब मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस डिसीजन, अच्छा अगर ऐसा हो गया, अगर खुदा न खास्त पगा कोई ये पद गो यू विल कंटिन्यूसली मेक ऑन प्लान्स, इट विल नेवर वर्क प्रॉपरली. जो भी यू हैव डन, यू हैव टेकन अ डिसीजन, कुछ भी ले लिया, रेस्ट अश्योर्ड, पुट 100% इनटू इट. जो भी ले लिया बस आप फुली कर दो. आपके जो अभी द स्टेज इन विच यू आर इन राइट नाउ, it's a very critical phase. It's a phase where you can become anything in future. लेकिन उसके लिए अभी जो आप डिसीजन लेंगे, आप फिर आपको पास्ट नहीं सोचना है आपने क्यों लिया, मेरे को उसने बोला, इसने बोला. डिसीजन कोई भी लिया, डोंट थिंक अबाउट पास्ट. और आगे क्या होगा, जस्ट कमिट टू इट. आगे जो भी होगा, खुदा अल्लाह ताला पुष्णोम सॉरी, बस हमने करना क्या है, डिसीजन लेके जस्ट. सो दिस इज द फ्रेज विच आई एम यूजिंग. ऑलवेज कीप presence. जो अभी present moment है ना, किसी भी चीज़ में. There is a book written on it, Power of Now, by one of the renowned psychologist, therapist. बहुत important है. In all practical sessions जो psychology में होते हैं, they apply it. One. And second thing which while analyzing you, वो मैंने देखी है कि in the phase in which you are, वहाँ पर बहुत सारे आपके decisions govern होंगे आपके जो आसपास लोग हैं. तो करना क्या है, यू कैन नेवर मेक एवरीबडी हैप्पी. आप अगर मेडिकल भी ले लोगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो आपसे राज़ी नहीं होंगे. आप अगर नॉन मेड भी लोगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो आपसे. सो नैचुरल यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी. सो उसके लिए करना क्या है, जो आप व्हाट इज़ योर पैशन, जो आपको अच्छा लगता है,
विच यू यर्न फॉर, जो आप जिसके बारे में आपको पूरी कन्विक्शन है कि दिस इज़ इट, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग इन माई लाइफ, कंपैरिजन टू व्हाट आर असलाफ्स यूज्ड टू बी। आज तो हमें स्पेशलाइजेशन करनी है, आप सारे इसलिए आए हो ना यहाँ, हमें एक पर्टिकुलर फील्ड दे दो, हमें वो चूज़ करना है एंड वी वांट टू वेंचर इनटू इट, हमें वो करना है और सो दैट दिस सेशन इज़ सक्सेसफुल। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन व्हेन यू aspire for sun, at least if you aim at sun, you will at least get to stars. So what I'm saying is, our aslafs, they used to be the word which our brothers have used, they used to be polymath. Polymath is a person who is skillful, who is very much expert in various fields. और अगर आप देखेंगे हमारे ही असलाफ, जो हमारे जिनके पीछे हम अपने आप को, फॉर एग्ज़ाम्पल वी से वी आर देयर फॉलोअर्स, बहुत से इमाम गज़ाली को ले लीजिए, उन्होंने 40 वॉल्यूम्स में बुक्स लिखी है, 40 वॉल्यूम्स, एंड आज के ज़माने में दैट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रीड, उनको उनने अब्रिज्ड वर्जन में 4 वॉल्यूम में बना दिया। 40 वॉल्यूम्स ही हैड रिटन इट, और कंप्यूटर से नहीं, प्लेजरिज्म उधर से कॉपी कर लिया और जस्ट पेस्टेड फ्रॉम देयर एंड छपा लिया। ही रोट इट विद हिज हैंड, और आपको पता है उस टाइम पे वो इंक विंक सारा कुछ लाना पड़ता था, एंड ही रोट इट इन कंटिन्यूसली 40 वॉल्यूम्स, एंड दैट इज़ नॉट द ओनली वर्क जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई। तो तीसरी चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है, जो आपकी कंडीशनिंग हुई है ना आज तक, कि बुछुस यूथ है सारी चीज़, बुछुस यूथ ही बुछुस, वी आर लाइक अदर्स, है ना, जैसा वो है जैसा ये है मैं भी ऐसा ही हूँ। लेकिन ईच वन ऑफ यू, तुम लोग यूनिक हो, एंड बिलीव मी यू विल नॉट, बिकॉज यू आर यंग ना, आगे जब आप चलोगे यू विल फील दैट द टाइम वॉट एवर वॉज देयर, इट हैज़ जस्ट स्किप्ड लाइक सैंड स्किप्स फ्रॉम योर हैंड, ऐसे टाइम चलता है। एंड within 10 years you would be somebody else, after 10 years you will be somewhere else, and आगे जाके you will hardly imagine कि मैंने अपने life से किया क्या, have I given something prominent for my society, have I done something which I would be proud of। कल को एक चीज़ सोचो, कल को for example we all have to die now, कल को कुछ मैं ऐसा बोलूँ, whether it be your profession, whether it be your vocation, आपका जॉब ही मैंने ईमानदारी से किया है, आई एम हैप्पी विद इट, या जो भी मैं कल को कुछ करूँगा मैं खुश हूँ, मुझ में एतमाद है अपने आप पे कि वॉट एवर आई हैव डन इट्स गुड, अपने आप से मुतमईन हूँ मैं। दूसरों को तो तुम आप यू विल लाई टू एवरीवन, बट यू कैन नॉट लाई एंड चीट योरसेल्फ। कल को अगर आप देखोगे कि आपने क्या किया है, व्हाट यू हैव डन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, व्हाट हैव यू गिवन, है ना। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव written regarding and considered regarding while you were saying things. एक और चीज़, एक बंदे ने यहाँ पर बोली कि आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि आई वॉन्ट टू फाइनेंशियली डू समथिंग एंड डू बिजनेस ऑन द अदर हैंड सो दैट आई कैन सपोर्ट। So regarding you, I have a suggestion and which all others can also apply to their respective domains, कि आप एक काम करो, make your passion your vocation. जो आपका पैशन है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, you will have difficulties in the beginning, you will face difficulties, all of you। शुरू में होता है ना, कोई बंदा आप देखो कोई नई चीज़ अगर कोई स्टार्ट करेगा तचन कशीर मस खास कर काश नफर में उस दोस्त ये तो उसने गोड़ गोड़ रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, ये तो उसने खास नहीं उसने चल गया एक रेस्टोरेंट, वाइन वुचू थी कश्मीरीज आर बॉर्न फॉलोअर्स, एक ने खोल दिया, इट्स वर्किंग नाउ एवरीबडी हैज स्टार्टेड ओपनिंग स्टार्टअप्स एज रेस्टोरेंट्स या व्हाटएवर। तो यू कैन मेक व्हाटएवर यू हैव पैशन इन, उसको मर्ज करो, योर पैशन को मर्ज करो विद योर करियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इन कनेक्शन टू दिस थिंग आई हैव वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू से, मनी, पैसा। अभी रोहल भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, that there was this person, he was himself a psychologist, and उसने बोला कि I had this much amount of salary, more than 1 lakh rupees, but I still have suicidal tendencies and what else। तो उसके मसले में I will tell you one thing, अगर उसका जो real ambition होता, जो उसको चाहत थी ना करने की, अगर उसने वो किया होता ना, चाहत किसको बोलते, आप
इन कनेक्शन टू दिस एक बात मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको करियर चूज़ करना है, हम सारे बोल रहे हैं आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, ये नहीं कोई मूवी देख ली उसमें वो मैथमेटिशियन है स्किलफुल, अभी मेरे को छोड़, मुझे मैथ करना है ना, मुझे बस मैथ है, मैं भी बनूंगा साइंटिस्ट। जो आप जस्ट कंटेम्पलेट, लोगों से बात करने के अलावा जस्ट सिट एट योर प्लेस, कुछ टाइम तक सिट अलोन और सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी अगर मैं करूँगा आई विल नेवर फील बोर्ड। दिस इज़ द मेन डेफिनेशन, व्हाट इज़ योर पैशन। कभी आप ये नहीं बोलने चाहिए कि मैं बोर्ड हूँ। देयर इज़ दिस वेरी फेमस दिस motivational speaker. He was a lawyer by profession. He was a lawyer and he had salaries in dollars and you cannot even comprehend how much it was. लेकिन उसको when he used to go to work, सब कुछ आपने अभी करियर चूज कर लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि you imagine yourself, आपने करियर चूज कर लिया, you are successful, in the end you are going to your job, you are sitting there, you are sitting on your desk, you are writing something, चाहे ख्याल you are married or what else, you are sitting के क्या कराएंगे, I never wanted this thing in my life. आपको पैसे भी है, you have money. ये these are examples right now in front of us. आपके पास पैसे भी, you have everything. लेकिन मसला क्या है, जो आपका पैशन था वो उसको आपने अपना करियर नहीं बनाया। हालांकि उसमें शुरू में डिफिकल्टीज आती, you would have, लेकिन आप जो एंड के टाइम पे करते you would have felt happy. और वही होते हैं जो कि फिर वो पायनियर्स होते हैं चीज़ों के, जो आगे आगे आप देखते हो ना, फोर रनर्स जिनके पीछे पीछे हम चलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स एग्जाम्पल, या ऐसे ऐसे बड़े बड़ी चीज़ जिन्होंने कुछ, दे हैड देयर पैशन इन पर्टिकुलर थिंग। जब उन्होंने वो चीज़ की फिर सारे लोगों उन्हीं से वो फाइनेंशियली एड हो जाते हैं। आज देखो कितने लोग एप्पल का फ़ोन बेचते हैं, लेकिन उस बंदे को सोचो जो ही नेवर वेंट टू एनी कॉलेज, जिसने वो बनाया, he never had higher academician, वो जो higher level की education, he never had that, जो Apple का pioneer है ना। I am giving you an example which will fit in your lives. इसीलिए why I am giving example of Apple, because Apple is something, it is considered to be very much prestigious to have an Apple iPhone. जब Apple iPhone किसी के पास, he'll take it like this, 1 लाख का फ़ोन है मेरे पास, लेकिन जिसने ये बनाया he never had a proper education, लेकिन उसका passion था वो, he had a zeal in it. तो आपको क्या करना है, एक बंदा एक बात बोलेगा, when I was so pissed off when I was in this place where you are right now, a person used to say one thing, the other person used to say, एक बंदा एक बात बोल रहा है, दूसरा बंदा दूसरी बात बोल रहा है, and as कर मैं न्यू सॉरी सुनस भला ये गैस, लेकिन alhamdulillah finally I'm happy because I have taken a decision which I loved, and I'm still, even if I don't do anything in my life, I say this with my open heart, even if I don't achieve any, I'll still never complain, because in the end you should not complain, you should not play that blame game. आपने ले लिया, कल को आप ले लिया, so मैंने कहा इससे अच्छा है, finally आप settle भी हो गए, and अचानक से उसने बोला ये करना है, इसने बोला वो करना है, उसने बोला ये करना है, तवे रोट में। It should not be like this. You should say मैंने बोला है ये पकड़ना है and I will take it. जो भी आप ले रहे हो, you should never blame anyone for that. जो भी करियर आप चूज़ करेंगे इंशाल्लाह, पहले एक तो दुआएं तो करनी है अल्लाह ताला से, लेकिन just brainstorm yourself as well कि जो करियर चूज़ करके कभी आप रिग्रेट नहीं करेंगे, you will not feel unhappy about that thing. One important thing, मनी का मुझे आपको बोलना था, उस कनेक्शन में मैंने आपको बोला, उसने 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है। आप कल अभी नहीं, अभी तो इंसान को लगता है यार ये पहुँच अच्छा पाए आसान या पता सॉरी मोदर लगा ये पहुँच चाहिए वहाँ, लेकिन यू विल फील दैट जब आपको पैसे आएंगे, यू विल स्टिल फील कि यू आर नॉट हैप्पी। ये क्यों बड़े बड़े, फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, वो क्यों सुसाइड्स करते हैं? आपने कभी सोचा है? उनके पास whatever they want in their life, उनको सब कुछ होता है, लेकिन उनको हैप्पीनेस नहीं आती है, उनको कंटेंटमेंट फील नहीं होता है। इसके रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताऊंगा विच विल फाइनली आई विल से रिगार्डिंग योर कंटेंटमेंट, इट्स रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स। कि आप इंसान सोचता है फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू हैव प्रॉपर रिलेशनशिप विद अदर्स, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सोचना है कि आर यू गुड टू योर सेल्फ। क्या अगर आपको कोई बोलेगा सुबह से लेकर शाम तक अकेले बैठना विदाउट एनी इंटरैक्शन, आर यू कंफर्टेबल विद दैट?
Do you enjoy your own company? आप तो सबको आप किसी यार आसुन या पर किस ब्याह किया सारा से दरबारा, लेकिन do you enjoy your own company? Can you just sit in a room without any distraction, close your room, sit there for 1 hour? I'm not talking about a day, just delimit it for an hour, for 5 minutes. Have you ever thought of this कि आप 5 मिनट तक अकेले बैठे हैं, किसी के साथ बात नहीं, but you enjoy your company. आपको अच्छा लगता है to give time to yourself, to contemplate at least कि वो भी राय देगा, मैं भी राय दूंगा, ये बाहर जाओगे वहाँ एक और राय देगा, आगे जाओगे तत्वनी बयाग बदली चीज़ा सुधी पानी दलील, सबकी दलीलें होंगी और सबकी सही होंगी, लेकिन उनका अलग बैकग्राउंड है. इट्स नॉट नेसेसरी जो उन्होंने बोला इट विल फिट इन योर केस, है ना. सबकी अपनी अपनी बैकग्राउंड स्टोरी, वो सही होते हैं, कुछ अच्छे मशवरे देंगे, कहाँ अड़वाना निगाह डालना. तो मूल शॉर्ट में एक चीज़ है, इट इज़ यू हु हैज़ टू टेक डिसीजंस, हु हैव टू राइट नाउ. तो जस्ट वी विल से आपको, मैं एक ग्रुप है, आई कैन नॉट से ऑल ऑफ यू टेक मेडिकल्स, ऐसा हो सकता है. यू नो योरसेल्फ, सारे नॉन मेड ले लो, 50-50 कर लेते हैं, ये वाला साइड मेड लेता है, ये वाला साइड नॉन मेड लेता है. वी कैन नॉट डू दिस. आप अगर कोई भी, आप इवन इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर, आज क्या बोलेंगे यार मैंने यार अब राइटर ही बानो ने क्या गोई नियर बह गए शौक. बट अगर आपको वो अच्छा लगता है, बिलीव मी, you will reach to such place, you will have such grandeur in your life that nobody can even dare to talk about you. आप उस position पे पहुंच. Recently we had that hijabi, a girl, she's from America, I guess probably from UK. She wears full hijab, but she has written a novel, and she is one among the best selling books which she had written of, for example, the novel which she had written at that time. So she wears hijab, but she writes, she loves it. आपको अगर कुछ any damn thing which you love, which you are passionate, just go through it and just put yourself in it.